یہ سچی داستان سمندری شہر کے نواحی گاؤں کے ایک ایسے شخص کی ہے جو کالے علم کی چلہ کشی کے دوران ذہنی طور پر مفلوج ہو گیا تھا، اور اس کی زندگی کا بقیہ آخری حصہ بے حسی اور بے شعوری میں گزر کر نیست و نابود ہو گیا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ پرانے زمانے کے بزرگ جب بھی صاحب علم کا ذکر کرتے ہیں تو اس شخص کا حوالہ ضرور دیتے ہیں جسے گزرے ہوئے ایک زمانہ بیت چکا۔ معذرت کے ساتھ میں یہاں اس بیتے ہوئے کل کے متعلق کچھ معلومات خفیہ رکھوں گا۔ یہ ماجرا ہے 1969 کا۔ 27 سالہ اسلم گاؤں کا خوبصورت و خوبرو جوان شخص تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا وارث تھا۔ سرخی مائل گورا سفید رنگ اور بھرا ہوا اس کا وجود قابل رشک تھا۔ 6 فٹ کے قریب اس کا قد اسے سب سے جدا اور منفرد پرکشش بنا دیتا تھا۔ کانوں تک لہراتے ہوئے اس کے سلکی ہلکے بھورے اور لمبے بال اس پر خوب جچتے تھے۔ خوش مزاج نیلی سی آنکھیں قاتلانہ تھیں، یہاں تک کہ وہ اپنی مثال اب ہی تھا۔ FA کے بعد وہ کالج چھوڑ چکا تھا۔ اس کا باپ دنیا سے کوچ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مزید آگے اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکا، اور اب وہ صرف کھیتوں کو سنبھالتا تھا۔ زندگی ہنسی خوشی بسر ہونے کو تھی۔ ماہ و سال پرسکون سرک رہے تھے، لیکن ابھی ایک اور خوشی کی آمد باقی تھی۔ اسلم کی شادی۔ اس کی ماں کو اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کی دلہن کو لے کر آنا تھا، اور اسلم آج کل کا کہہ کر نہ جانے کیوں شادی سے دور بھاگتا تھا۔ اس کے انکار نہ ماننے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی، نہ ہی وہ عشق و معاشقے کی راہوں کا مسافر تھا۔ وہ ویسے ہی ابھی شادی کی جھنجھلاہٹوں سے دور رہنا چاہتا تھا۔ اب پھر وقت اور حالات نے اس کے لیے کچھ منفرد ہی سوچ رکھا تھا، اور وہ ہر چیز سے بے نیاز اور بے خبر تھا۔ ماہ جولائی کا وہ ایک گرم دن تھا۔ وقت گزرتا ہوا سورج کے گرم سنہری تھال کو اپنے ساتھ مغرب کی اور لے جا چکا تھا۔ سارے دن کی گرمی اکٹھی سمٹ کر حبس میں بدل چکی تھی، ہر زیر و ساکت و جامد سی معلوم ہو رہی تھی۔ خفیف سرخی مائل گلابی سورج دور کہیں افق میں گرتا جا رہا تھا۔ گاؤں کی ایک تنگ سی گلی سے کوئی سر جھکائے ہوئے چپکے سے گزر رہا تھا۔ موسم بالکل تھما ہوا سا تھا، پھر بھی آس پاس بکھرنے والی معطر خوشبو روح افروز تھی۔ وہ اسلم ہی تھا۔ سفید کپڑوں میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی پرکشش اور جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ہوش ربا خوشبو اسلم نے ہی لگائی ہوئی تھی۔ وہ گھر سے نکل کر اب اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا۔ گاؤں سے تھوڑی ہی دور اس کے کھیت موجود تھے۔ وہ 10-12 منٹ کی پیدل مسافت کے بعد اپنے کھیتوں میں پہنچ گیا تھا۔ اسلم کے وہاں صرف کھیت ہی نہیں بلکہ کچھ بھینسیں اور کچھ بھیڑ بکریاں بھی تھیں، اور ایک چھوٹی سی حویلی بھی بنی ہوئی تھی۔ دن کا پچھلا پہر سارے دن کی گرمی کو شاید ابال رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حبس ہر جاندار کو نڈھال کیے جا رہی تھی۔ کھیتوں میں تو اور بھی زیادہ گرمی کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ اسلم روز مرہ کے معمول کے مطابق کام والے کپڑے پہن کر اب اپنے مویشیوں کو سنبھالنے لگا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شام کے ہلکے سائے 400 پھیل گئے۔ مدھم سے تاریک سائے ہر چیز کو نگل جانے کو بیتاب سے ہونے لگے تھے۔ وقت کسی بے رحم ہاتھوں میں اندھی تلوار کی طرح چلتا رہا، اور پھر وہ موڑ بھی آ گیا جہاں اسلم کی زندگی کی آخری گھڑی اس کی منتظر کھڑی تھی۔ وہ حادثہ ایک ایسا دلخراش سانحہ تھا کہ گاؤں کے ہر خاص و عام کی زبان پر آہ افسوس کا قصیدہ رواں تھا۔ وہ گرمیوں کی ہی ایک گہری تشویشناک شام تھی جب اسلم ایک ایسے شخص سے ملا جو اپنے علاقے میں کالے علم کا ماہر تھا۔ ممکن ہے کہ اسلم اس صاحب علم شخص سے پہلے بھی ملا کرتا تھا اور اس بات کی بھنک کبھی کسی کو نہ لگی ہو، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آخر اسلم اور اس شخص کا دوستانہ چھپا کیسے رہا۔ پھر یہ بات تھی کہ اسلم صرف تاریک راتوں میں ہی اس شخص سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلم کی ذاتی مصروفیات کا کسی اور کو پتہ ہی نہ تھا، اور پتہ چلتا بھی کیسے؟ وہ رات کو ہمیشہ اپنی کھیتوں والی حویلی میں ہی تو رہا کرتا تھا۔ اسلم کی خاموشی اور تنہا پرستی صرف وہ خود ہی جانتا تھا، جبکہ لوگوں کو اسلم کی یہ عادت اور مزاج، اس کی سادگی اور شرافت محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اس بار معاملہ ذرا الٹ سا ہو گیا تھا۔ پہلی بار گاؤں میں اسلم کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا تھا، اور اسلم کو بھی معلوم پڑ گیا تھا کہ اس کا کوئی راز افشا سا ہو چکا ہے، لیکن وہ خود پوچھ کر بدنام ہونے سے ڈرتا تھا، اور گاؤں والوں نے بھی اسے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ گاؤں کے کچھ سیانے بزرگ اسے بس سوالیہ نگاہوں سے تولتے رہتے تھے۔
सबसे ज्यादा घूरने वाला शख्स नजीर था। इसके खेत गांव से काफी दूर मौजूद कब्रिस्तान के करीब पड़ते थे। यकीनन नजीर ने ही असलम का पूल गांव में खोला था। असलम को लोगों की ये बात बहुत नागवार गुजरती थी। वो सोचों के समंदर में गोया डूबा रहता था, और फिर इसे मालूम पड़ गया कि आखिर मेरा भांडा कैसे फूटा। इसे पिछली रातों में चलती हुई तेज हवाओं पर यकीन हो गया था कि उन हवाओं में मेरे मनपसंद इत्र की खुशबू शामिल थी। वो वाकई बहुत मसहूरकुन और तेज खुशबू थी, जिसे गांव का और कोई शख्स नहीं लगाया करता था। बस असलम ही इस खुशबू का शौकीन था। असलम को वजह मालूम हो चुकी थी, जिसकी वजह से गांव वाले इसे मशकूक निगाहों से देखते थे। असलम हर चीज नजरअंदाज करके अपने मामूल में मसरूफ रहा, और आखिरकार वो दिन भी तुलू हो गया जब गांव के ही किसी शख्स ने गांव वालों को असलम के बारे में बताया। और फिर जिसने भी सुना वो कब्रिस्तान की तरफ दौड़ उठा। लोगों ने असलम को कब्रिस्तान में बेहोश पाया और उसको उठाकर उसके घर ले आए। माँ का लख्त जिगर बेहाल था। रू कर माँ का हाल भी नाकाबिल दीद हो चुका था। जितने मुन्ह इतनी बातें पूरे गांव में फैल चुकी थीं। असलम को होश तो आ गया, लेकिन जिसको होश आया वो असलम नहीं था। असलम तो बहुत सफाई पसंद और खुशबुओं में रहने वाला खूबसूरत नौजवान था, लेकिन ये वाला असलम कुछ और ही था। चेहरा गोया भयानक और बहुत कमजोर सा था। अपने ही हाथों से खुद के कपड़े फाड़ डालता था। खुद को ही अपने दांतों से काट कर लहूलुहान कर दिया करता था। गांव के किसी फर्द को अपने पास नहीं आने देता था और अक्सर लोगों के पीछे लग जाया करता था। असलम के इस हौलनाक किरदार की दहशत पूरे गांव में फैल चुकी थी। और फिर एक दिन कुछ जवान लड़कों ने असलम को किसी तरह काबू किया और उसके खेतों वाली हवेली में छोड़ आए। वहां इसके मवेशी थे। असलम के डर और दहशत से आसपास के खेतों वाले भी अपनी फसलों में कम ही जाते थे। ये सब अचानक ही हुआ था और लोगों को यही शक था कि असलम रात को कब्रिस्तान में जाता था। इसे किसी आसेब का साया हो गया है। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम हुआ कि आखिर असलम रात के वक्त कब्रिस्तान लेने किया जाता था। बात घूमते घूमते आखिर इमाम मस्जिद तक जा पहुंची, और फिर इमाम साहिब ने अपने ही तौर पर असलम के हालात पर नजरसानी की। इमाम साहिब किसी सैयद पीर को जानते थे। असलम की मां से इजाजत तलब करके इमाम साहिब एक दिन इस पीर साहिब को गांव में ले आए। वो असलम के घर उसकी मां से जाकर मिले और असलम के हवाले से बातचीत की। पीर साहिब के साथ इमाम मस्जिद और गांव के कुछ सियाने लोग असलम के खेतों में जा पहुंचे। असलम ने जैसे ही लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वो जोरदार चीख व पुकार करता हुआ खुद को गोया नोचने लगा। असलम वाकई बहुत कमजोर और ड्रोनी सी हालत में बदल चुका था। इसे देखते ही लोगों के दिल उदास होकर रह गए थे। एक फूल जैसा इंसान रौंद कर रह गया था। वो जिंदा तो था मगर मुर्दा जैसा। पीर साहिब ने असलम के करीब जाते ही कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर कुछ ही लम्हों में असलम किसी मुजस्समे जैसा बन गया, बिल्कुल खामोश और साकित। असलम में कोई हवाई मखलूक हाजिर हो चुकी थी, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थी, बहुत मुतमईन और पुरसुकून। कौन हो तुम? पीर साहिब ने इस्तफसार किया। ए महाकाली हूं। असलम की भारी और गरजदार आवाज गूंजी, जिसे सुनकर बाकी लोग लरज कर रह गए, और पीर साहिब गहरी तशवीशनाक निगाहों से असलम को घूरते रहे। क्यों इस बच्चे पर कब्जा किया है? एक बार फिर पीर साहिब की आवाज उभरी। इसने मुझे तकलीफ दी, गुस्सा दिलाया था। असलम में हाजिर हुई महाकाली कदरे मतनफ्फिर अंदाज में बोली, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पीर साहिब ने दोबारा सवाल किया और असलम को बगौर देखने लगे। ये चिल्ला कशी करके मुझे अपनी कैद में रखना चाहता था। हाय हा, मैंने इसे नाकाम कर दिया। एक भारी और तंजिया सी मुस्कुराहट के साथ असलम ने जवाब दिया। इस बार असलम के जवाब पर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए थे। असलम का असली सच आज साबित हो गया था। यही वजह थी कि आज असलम मुर्दा जिंदगी में झोल रहा था। इसका जीना मरना एक बराबर था। इस बच्चे से गलती हो गई है, इसे मुआफ कर दो और छोड़कर चली जाओ। पीर साहिब ने कदरे पुरसुकून अंदाज में कहा, मैं आपकी इज्जत करती हूं क्योंकि अब साहिब इल्म है। ठीक है, मैं चली जाती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, और मेरी शर्त में कोई तरमीम नहीं होगी।
शर्त सुनकर यहाँ से वापस लूट जाना, वरना मेरा कहर ये लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अब सब लोग जिम्मेदार होंगे। असलम की आवाज के साथ साथ एक औरत की आवाज भी सुनाई दी जो अपने फैसले पर अटल थी। बोलो, क्या शर्त है? पीर साहिब ने पूछा। ए मम। असलम के नथनों से गहरी लंबी सांस खारिज हुई और वो अपनी धंसी हुई भयानक आंखों से हर शख्स को घूरने लगा। वो एक लम्हा के लिए चुप सा रहा और फिर गोया हुआ। मिस्र के अजायब घर में एक हिंदी तिलिस्मी किताब मौजूद है। इसमें मेरे नाम का एक मंत्र है। वो मेरे सामने पढ़ा जाएगा तो मैं बिना कोई नुकसान किए चली जाऊंगी। अब इसी दिन मेरे सामने आना जिस दिन वो किताब आपके पास मौजूद हो। अब यहां से चले जाओ। हाय हा हाय हा। असलम की भारी भरकम मोटी बारीक आवाज अब कहकहों में बदल चुकी थी और फिर वो सभी लोग पीर साहिब के साथ वहां से गांव वापस आ गए। हालात की नाजुकी सभी को मालूम पड़ चुकी थी। सब जान चुके थे कि महाकाली अब असलम को कभी नहीं जाने देगी। वो इसे अपने साए तले सजा देती रहेगी। पीर साहिब बहुत पहुंचे हुए हस्ती थे, मगर फिर भी शर्त की तरमीम पर असलम की जान के खुद अब दुश्मन नहीं बनना चाहते थे। अब यह भी मुमकिन नहीं था कि मिस्र जाया जा सके और वहां के अजायब घर से मतलूबा किताब यहां लाई जा सके। आसान लफ्जों में महाकाली का यही मतलब था कि वो असलम की गलती को कभी मुआफ नहीं करेगी जब तक कि वो जिंदा है। वो जिंदा मौत में रहेगा। पीर साहिब वापस अपने मकाम की ओर जा चुके थे। इमाम मस्जिद भी असलम की वालिदा को तसल्ली देते हुए अपने घर जा चुके थे। अब एक तरफ असलम की दर्दनाक रुदात थी और दूसरी तरफ गांव के बेबस मशवरे। रातों के अंधेरे में असलम की चीख व पुकार गांव में सुनाई दिया करती थी। कभी वो हंसा करता था और कभी रोया करता था। वो बहुत तकलीफ में था। वो पागल हो चुका था, जिसे अब कोई होश ना रहा था। इसके खेतों की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क के आसपास वाले खेत भी इसकी दहशत से वीरान हो चुके थे। लोगों ने असलम के डर की वजह से अपनी फसलों में जाना छोड़ दिया था। एक दो बार ऐसा हुआ था कि असलम पीछे लग जाया करता था और फिर इस जान छुड़वाना मुश्किल हो जाया करता था। वो असलम नहीं था, बल्कि इसमें रहने वाले जिन्नात लोगों को जान से मार डालने को तैयार रहते थे। यही वजह थी कि असलम की हवेली के आसपास वाले खेतों को वीरान छोड़ दिया गया था। असलम इस कदर पागल हो चुका था कि इसे अपनी मां की भी पहचान भूल चुकी थी। वक्त गुजरता गया और महीने साल बनते गए और फिर एक दिन किसी ने देखा कि असलम की हवेली पर कौवे ही कौवे उड़ रहे हैं। ये मंजर गांव के और लोगों ने भी देखा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो करीब जाकर देख सके। 2-4 दिन वहां मुसलसल कौवे मकीन रहे और फिर कुछ आवारा कुत्तों को भी वहां लड़ते झगड़ते देखा गया। गांव वालों को शक सा होने लगा था कि हो ना हो असलम मर चुका है। गांव वालों ने कुछ जवान लड़कों को वहां देखने के लिए भेजा और जल्द पता चल गया कि उनका शक दुरुस्त था। असलम मरा पड़ा था और उसकी बोसीदा लाश को जानवर और परिंदों ने नोच नोच कर गोया बखेर दिया था। आखिरकार हिम्मत करके असलम की टूटी फूटी और बदबूदार लाश को दफना दिया गया। लोग अपने खेतों में आना जाना शुरू हो गए थे, लेकिन असलम की हवेली का खंडर ज़दा असासा आज भी वहां मौजूद है। असलम के खेतों को वक्त ने जंगल नुमा बना दिया है। आज भी रातों के अंधेरे में असलम की इस खंडर ज़दा हवेली में रोने और हंसने की आवाज आती है और गांव में खौफनाक दहशत फैल जाती है। असलम की मां भी अपने बेटे की वफात के बाद दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। आज भी असलम का वो घर खाली पड़ा हुआ है और कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं था जो घर और जमीन संभाल सकता। कई लोग आए असलम की हवेली और जमीन से आसेब भगाने के लिए, लेकिन आने वाले खुद ही भाग जाते रहे। न जाने असलम ने ऐसा कौन सा चिल्ला करने की कोशिश की थी जो वो इतनी बड़ी सजा में जिंदा लाश की तरह तड़प तड़प कर आखिर मर ही गया और मर कर भी अपने निशान छोड़ गया जिन्हें कोई भी मिटा ना सका और मर कर भी अपने निशान छोड़ गया जिन्हें कोई भी मिटा ना सका। न जाने कैसा इल्म था इसके उस्ताद के पास जो वो असलम को भी संभाल ना पाया, बल्कि खुद कहीं रुपोश हो गया और किसी को ये बात भी नहीं मालूम थी कि असलम को चिल्ला कशी करवाने वाला पीर बाबा था कौन। बस कियास आराइयां ही थी, लेकिन ये हकीकत थी कि एक जवान इंसान बेमौत मारा गया।